حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا قال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام ان اليوم عمل ولا حسابا وغدن حساب ولا عملہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہر جگہ پر اس طرح سے پہلے مسلسل برنامے انجام دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے دنیا میں اور پورے ممالک کرونا وائرس کی ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال انجمن حسینیہ تحصیل اڑی کی طرف سے جو آن لائن کلاسیں برگزار کی ہوئی ہیں اور حوزہ علمیہ اورنٹل کالج اور دارالقرآن خیگام کی طرف سے آپ کی خدمت میں مسلسل پچھلے کچھ دنوں سے عرض کرتے آ رہے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس کلام سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان الیوم عمل ولا حسابا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ جو خداوند عالم نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا ہے، یہ مبارک دن، یہ مبارک ساعت، یہ فضیلت والے ایام ہماری ایام میں خداوند عالم نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اسے غنیمت سمجھو، ان الیوم عمل، آج تمہارے لیے جو ہیں یہ عمل کرنے کے دن ہیں، ولا حسابہ، تم سے کوئی ابھی حساب، کوئی سوال کچھ بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے، وغدن حساب ولا عملہ، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے اس وقت تم سے حساب لیا جائے گا، اس وقت عمل نہیں کر سکتے ہو، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے ہو۔ جو اس دنیا میں جب خداوند عالم نے تمہاری تخلیق کی، اس دنیا میں تمہیں لایا، جو چیزیں تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی ان چیزوں کو انجام دیجیے، اور جن کے بارے میں تم سے کہا گیا کہ دوری اختیار کیجیے، دوری اختیار کیجیے۔ اور یہ ماہ سیام کا، ماہ رمضان مبارک کا جو مہینہ خداوند عالم نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہوا ہے، خداوند عالم چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں سال آئندہ پھر دوبارہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات الہی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو دن ہیں ان الیوم عمل ولا حسابا، یہ عمل کرنے کے دن ہیں، اچھائی کرنے کے دن ہیں، کسی کو اختیار کرانے کے دن ہیں، روزہ رکھنے کے دن ہیں، حتیٰ کہ مستحبات نماز کے بھی بارے میں آیا ہے کہ اگر تم اس میں مستحبات 1 رکعت نماز پڑھو گے تو اس کا بھی دگنا خداوند عالم تمہیں ثواب عطا کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ اگر تم 1 آیات پڑھو گے تو خداوند عالم 1 آیات کے بدلے میں ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک نہیں، سونے کے بارے میں بھی آیا، عام دنوں میں تم سو جاتے تھے، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، ان دنوں میں اگر تم سو بھی جاؤ گے تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہاری سانس لینا بھی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم روزے دار ہونے چاہیے، اس میں شرط یہ ہے۔ بہرحال وغدن حساب ولا عملہ، اور کل جب اس دنیا سے تم چلے جاؤ گے، آخر ہر ایک انسان کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
हर एक इंसान को इस दुनिया से भी जाना है। कल जब इस दुनिया से चले जाओगे उस वक्त वक़द्दन हिसाब, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जरा जरा चीज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तुमसे यही पूछा जाएगा कि 2020 का जो माह रमजान तुम्हारी जिंदगी में नसीब किया हुआ था, उसमें तुमने कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, अपनी कितनी बख्शिश करवाई, मगफरत करवाई, क्या खुदावंद आलम से तलब किया, क्या खुदावंद आलम से तुमने हासिल किया और किस चीज से तुमने दूरी इख्तियार की। वला अमलन, और उस वक्त तुम अमल नहीं कर सकते हो, उस वक्त तुम्हें हिसाब व किताब देना पड़ेगा। मफ़हूम रोजा क्या है? मफ़हूम रोजे के बारे में आया है कि रोजे के माने हैं सोम, और अरबी लुगत में सोम के माने हैं दूरी इख्तियार करना, किससे, खाने से, पीने से, हराम कामों से इज्तनाब करना, या ऐसा कोई काम अंजाम ना देना कि जिससे तुम्हारा रोजा बातिल हो जाए। मसलन कह करना या डुबकी लगाना, या ऐसा कोई काम अंजाम देना कि जिससे तुम्हारा रोजा बातिल हो जाए, या अजान सुबह तक अमदन क्या करना, गुस्ले हैज, निफास या जनाबत की हालत में रहना। तो ये जो चीजें हैं ये रोजे को बातिल कर देती हैं। और सोम का माना भी अरबी में जो आया है, लुगत में जो आया है, वो यही है कि दूरी इख्तियार करना कारे हराम से। बहरहाल इससे पहले जो उम्मती थे ये मखसूस अहले इस्लाम के लिए रोजे वाजिब नहीं हैं, बल्कि दूसरे जो तमाम अदियान आसमानी थी उनके ऊपर भी रोजा वाजिब करार दिया था। जिस तरह कुरान करीम में आया है इसके बारे में, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, कि जिस तरह तुम्हारे पुश्ते वालों के ऊपर, तुम्हारे जो आबा व अजदाद जो थे उनके ऊपर रोजा वाजिब करार दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है, ये सवाल मतरा किया जाता है कि बस अगर रोजा जो है इस्लाम में आया हुआ है तो ये दूसरे साल की दूसरी हिजरत में 18 महीने गुजरने के बाद जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नाजिल हुए तो उसी वक्त ये रोजा क्यों वाजिब हुआ? बहरहाल इसका जवाब यूं दे सकते हैं कि ये जो कानून इलाही है, ये जो इस्लाम है, ये तदरीजी है, दफ़अतन नहीं है। यानी युवाश आराम आराम से जो भी ये काम थे ये खुदावंद आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाफज किए होते तदरीजी तौर पर। बाकी वाले जो उम्मती जो थे, बाकी वाले जो नबी थे, किसी नबी के रवायतों में मिलता है कि उनके ज़माने में 3 महीने भी रोजे होते थे, 4 महीने भी होते थे, 6 महीने भी होते थे, और अलग अलग मुख्तलिफ उनके बारे में मिलता है। बहरहाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि ये क्या वजह है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हिजरत के बाद 18 महीने के बाद जब ये मदीना में नाजिल हुए, जब मदीना में वारिद हुए, तो उसी वक्त ये रोजे क्यों वाजिब करार दिए गए? तो इसलिए क्योंकि ये जो इस्लाम है हम तक जो पहुंचा है तदरीजन पहुंचा है, आराम आराम से पहुंचा है, जुज करके इसका पहुंचे हैं। और दूसरी वजह इसकी यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं ये किसी मशक्कत में, मुसीबत में न पड़ जाए, किसी और परेशानी का दोचार न हो जाए, ताकि इन्हें कोई मशक्कत न हो जाए, ताकि इन्हें कोई मुसीबत न हो जाए। इसीलिए बार बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज की तरफ ताकीद करते हैं कि तुम ये ना समझना कि तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर तुम रोजे की हालत में सो भी जाओगे तो खुदावंद आलम उसका भी तुम्हें सवाब अता कर रहा है। रोजे की हालत में कोई भी काम अंजाम दे रहे, हत्ता कि सांस भी निकाल रहे हो, उस सांस का भी तुम्हें खुदावंद आलम सवाब अता कर रहा है। और इसीलिए ये रोजा जो है हमारी जिंदगी में खुदावंद आलम ने हमें जो अता किया है ताकि किसी मशक्कत और मुसीबत में ना पड़ जाए। और फायदा रोजा जो है वो ये है कि जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुमु तसिहु, ताकि तुम रोजा रखो, इससे तुम सालम रह जाओ। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं नहीं
हम अपने बच्चों को रोज़ा नहीं रखने देते हैं, हम अपने घर वालों को, अजीज़ों को, प्यारों को रोज़ा नहीं रखने देते, इनकी सेहत बिगड़ जाएगी, इनकी सेहत इनकी ख़राब हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएंगे, ये लागर हो जाएंगे। अजीज़ों, साइंस के लिहाज से भी आया है और इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी सेहत ख़राब हो रही है, तुम्हारे वजूद के अंदर, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी की बीमारी पैदा हो रही है, तो तुम्हें चाहिए उस वक्त कम से कम, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि दिन में 8 घंटे 9 घंटे तुम क्या करो, फाका कशी किया करो। तो ये जो रोजा जो रख रहा है इंसान, इससे इंसान क्या रहता है, सालम रहता है, तंदुरुस्त रहता है, सही रहता है, खुदा ना खास्ता इसके बदन में कोई बीमारी पैदा नहीं होती है। और इसका मानवी क्या है फायदा, इसका मानवी फायदा क्या है, तो इसके बारे में रवायतों में आया है कि ये जो इंसान रोजा रखता है, सूमू जुन्नतु मिनन नार, ये कर रोजे क़यामत के दिन जब इस इंसान को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा किसकी तरफ, वाम्मा शाकिर वाम्मा कफूरा, जिसकी चीज के बारे में है। तो तुम्हें मैंने 2 ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पर दुनिया में, सही रास्ता और गलत रास्ता। सही रास्ता तुमने अंजाम दिया तो उसके लिए तुम्हें अच्छाई मिलेगी, बुरा रास्ता तुमने अंजाम दिया तो उसके लिए वहां पर तुम्हें देखा जाएगा। और रोजे के बारे में आया है कि ये क्या है, इंसान के लिए सुपर है। जब इस इंसान को खुदा ना खास्ता कर रोजे क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, तो ये इंसान के उस वक्त ये क्या करेगा, उसकी ये निगहदारी करेगा, उसकी ये सुपर करेगा, उसकी ये पासदारी करेगा। ये रोजा कहेगा कि नहीं, इस इंसान ने फलाने साल में फलानी जगह पर इस भूख और प्यास की हालत में मुझे क्या किया है, इंजाम दे, इस इंसान को नारे जहन्नम से बचाएगा। और फजीलत क्या है इसकी, के रोजा रखने की फजीलत क्या है, क्यों हम लोग रोजा रख रहे हैं, इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु शैइन ज़कातिन व ज़कातुल अब्दानिन व ज़कातुल अब्दान सयाम, हर चीज की एक ज़कात है और तुम्हारे बदनों की ज़कात जो है वो क्या है, रोजा रखो। अगर तुमने रोजा रख दिया तो तुमने अपने क्या किया, बदनों का, अपने बदन की ज़कात अता कर दी। बहरहाल अब इल्लत वजूब रोजा क्या है, क्या वजह है कि ये जो रमजान मुबारक का महीना जो है ये हमारे ऊपर वाजिब करार दिया गया है। इसमें सबसे पहले यह है कि कुरान में आया है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम रस्तगार हो जाओ, ताकि तुम खुदावंद आलम की खुशनुदी को हासिल कर लो। और दूसरा ये कि जो गनी लोग हैं, जिन लोगों को खुदावंद आलम ने कुदरत अता कर रखी है, माल से नवाजा रहा है, माल हर चीज से माला माल कर रखा है, वो लोग जो फकीर जो लोग हैं, उनकी क्या भूख और प्यास को समझ सकें कि खुदाया हम लोग रोजे की हालत में भूखे रहते हैं, हमें प्यास लगती है, हम मुसीबत में मशक्कत में रहते हैं। जरा वो ये एहसास करे उस इंसान के बारे में कि जिसके बेचारों, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और बहुत से ऐसे हैं, कहीं जगह पर सुनने को भी आ रहा है और कहीं जगह पर ऐसे देखने को भी आ रहा है कि 2-2 दिन से 3 दिन से बेचारों के पास ना कुछ खाने की चीजें फराहम है, ना कुछ और बाकी चीजें नहीं है। तुम रोजा रखो ताकि तुम देखो कि जो फकीर लोग हैं वो किस तरह भूखे रहते हैं, किस तरह प्यासे रहते हैं, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करते हैं इस भूख की आलम में। ये एक रोजे का फलसफा और रोजे का फायदा भी है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये जो रोजा तुम्हारे ऊपर वाजिब करार दी, इसकी इल्लत ये है ताकि सरवतमंद लोग जो हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, रईस लोग जो हैं, वो लोग उन लोगों की भूख और प्यास को देख सकें कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं मिलता है। बस मेरी भी ये गुजारिश है कि अभी जो हालात ऐसे हैं, जो इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं तमाम ममालिक, आपसे गुजारिश है कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, अगर घरों में 2 चीजें 3 चीजें ला रही हो तो उसको एक को कम कीजिए और अपने हमसाये तक, अपने उन अजीजों तक पहुंचाइए जिन बेचारों तक कुछ भी नहीं है। और खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, खुदावंद आलम 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदके में हमारे इन मुख्तसर सी अमाल को, हमारी इन इबादत को, हमारे उन रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये जो वबा फैली हुई है इस दुनिया में, खुदावंद आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में इस वबा से हम लोगों को नजात दिलाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।